Good morning, everyone. I hope I'm audible to everyone. Let's wait for everybody to join and then I'll start with today's class. Okay, so in yesterday's class, we had started about timing diagrams. So today we'll be continuing with the rest of the timing diagrams. And also there is a topic known as instruction flow. Okay, instruction and data flow. So along with the timing diagram, we'll be covering that topic also with the help of diagrams, because that topic is best explained only with the help of diagrams. So today I'll be explaining that topic also along with the timing diagrams. So let me share my screen and then we'll proceed with that topic. Okay. Okay. So I'll be sharing my screen. Just hold on. Just give me a second. I will share my screen. Okay, so I hope my screen is visible to everyone. Can one of you please confirm it in the chat box that my screen is visible or not? The presentation that I'm sharing. Is it visible to everyone or not? Okay. Okay. So let's start. Okay, so opcode machine cycle, yesterday I had told you that it requires 4 T states. Just let me take it to full screen. Yes, so opcode fetch cycle, yesterday I had told you that it requires 4 T states. Okay, and here this 20H and this 4FH, this is nothing. 4FH is the opcode. Actually, what happens is for every instruction, there is a corresponding hexadecimal code in the memory of microprocessor.
so that it understands, because if you are typing add or subtract, the microprocessor doesn't know what it is. So for every instruction, like for every 74 instructions that we'll be studying in 8085, or the number of instructions that we will be studying in 8086, for each opcode or instruction there is a corresponding hexadecimal code in 8085's memory, so that it can understand exactly what add means. So if you see a diagram in which this is written like this, that 20H and 4FH is the opcode. So 4FH must be some instructions opcode, like add, subtract, or anything. I do not exactly remember all the 74 opcodes. There is a list available at the end of Goenka, so you can see that what specific opcode stands for which instruction. Okay. So, and if this is given like this, 20H. So as I told you yesterday, that the address bits are 16-bit long, so 4 digits will be there. So this is the lower address. Okay, so opcode fetch we had already studied. 4 T states were required, and it is a memory read operation because the instruction is read from the memory. So now today we'll be studying with memory read operation. Okay, opcode fetch कल हमने पढ़ा था. Okay, before moving to memory read, as I told you, today we'll also be studying instruction flow. So what do you mean by instruction flow or data flow? So when we are studying instruction flow or data flow, what we are trying to say is कि 8085 या किसी भी microprocessor में data का flow होता कैसे है actually internally. Okay, so अगर आपको किसी एक specific microprocessor के लिए पढ़ना है, जैसे suppose यहाँ मैंने 8085 के diagram के help से आपको explain करने की कोशिश की है. So this is not the entire diagram of 8085. इसमें उसके कुछ कंपोनेंट्स को शो किया है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल या टाइमिंग डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो देखो, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है बी सी डी ई एच एल एस पी पी सी, ये क्या होता है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं, राइट? रजिस्टर्स किस लिए यूज होते हैं? स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए, जब प्रोसेसिंग करनी होती है माइक्रो प्रोसेसर को. तो हमारे पास कई टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है, या 16-बिट रजिस्टर्स. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स 8 बिट के होते हैं अगर हम 8085 की बात करें, और उनका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना. तो ये जो तुम्हारा बी सी डी ई एच एल, ये जो तुम्हारे 6 रजिस्टर्स हैं, ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो 8-बिट डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है. ये एसपी क्या है? एक 16-बिट रजिस्टर है जो कि स्टैक पॉइंटर होता है, जो कि क्या करता है? स्टैक का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है. अभी हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमने जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन पढ़ा था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे प्रोग्राम काउंटर, ये पीसी क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर. ये क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है. जो भी कॉन्जिक्यूटिवली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आते जाते हैं मेमोरी में, वो कहाँ स्टोर्ड है वो ऑपकोड, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, राइट. बट अगर आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कराना था तो आपको अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहीं और स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो जिस दूसरे एड्रेस पे आपको जंप करना है इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो आ पाएगा प्रोग्राम काउंटर में. तो हम क्या करते थे? अपने प्रोग्राम काउंटर के करंट एड्रेस को स्टैक पे पुश कर देते थे. तो यही है वो स्टैक पॉइंटर. ये स्टैक पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, जिससे कि जब प्रोग्राम काउंटर वापस हमारे मेन प्रोग्राम पे आना चाहे तो स्टैक पॉइंटर से वो एड्रेस पॉप हो जाएगा, वापस से प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा और हमारा मेन प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन लौट आएगा, ठीक है. तो ये पर्पस होता है इन रजिस्टर्स का, ठीक. उसके बाद देखो इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डीकोडर. तो ये क्या करता है? हमारा ऑपकोड जब फेच होगा तो कहाँ आ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. इंस्ट्रक्शन डीकोडर उसको डिकोड कर देगा. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट तो आपको पता ही है, अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स देती है, ठीक है. ये हमारी मेमोरी है. मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी को हम रीड कर सकते हैं. अगर आपने डेटा बस यूज किया तो आप डेटा राइट भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये हमारा पूरा एक डायग्राम है.
ये AD0 से AD7 मैंने आपको कल ही बताया था कि जब तक ALE सिग्नल इनेबल कर रहा होगा इस लैच को, तब तक ये इस सिग्नल को होल्ड करके रख लेगा जब तक आप इसको दोबारा चेंज ना करो। तो क्योंकि T1 साइकिल में हमारा बस ALE सिग्नल इनेबल्ड रहता है, राइट। तो ये देखो हमारा T1 इस डायग्राम में देखो, ये ALE सिग्नल इनेबल्ड है जब तक, तब तक तो आपका ये AD7 से AD0 वाला डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे डेटा फ्लो करेगा। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से क्या होगा, हमारा एड्रेस अवेलेबल होगा प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, राइट। फिर आप T1 साइकिल में ALE सिग्नल इनेबल करोगे, तो क्या होगा, हमारा AD7 और AD0 पे जो एड्रेस होगा उसमें से एड्रेस अलग होके A0 से A7 के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, राइट। A8 से A15 का एड्रेस हमेशा T1 से T3 साइकिल तक अवेलेबल रहता है, हमने टाइमिंग डायग्राम में देखा था। तो आपको कंप्लीट 16 बिट का एड्रेस मिल गया और वो मेमोरी लोकेशन पे हमारा 8085 पहुंच गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उस लोकेशन पे जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो डेटा कहाँ लोड हो जाएगा, डेटा बस पे। डेटा बस से ट्रैवल करके वो कहाँ जाएगा, हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। अब इस बीच आपको T1 साइकिल से ही पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेशन क्या था। ऑपकोड फेच था तो मेमोरी 0 होनी चाहिए, S1 S0 दोनों 1 1 होने चाहिए, राइट। उसके बाद फाइनली क्या होगा आपका, जब डेटा चला गया आपका मेमोरी में, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेटा रीड होगा। तो ये रीड इंस्ट्रक्शन की बात है, ठीक है। तो रीड होने लगेगा, पर अब आपका क्या हो रहा है, फाइनली डेटा रीड होने लगा, रीड होके आपने उसको डेटा बस पे भी डाल दिया। अब वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। अब T4 साइकिल में क्या होगा, डेटा तो रीड हो चुका, तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको डिकोड करेगा, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, ऑपकोड को फेच करके डिकोड करना, तभी तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब वो डिकोड हो रहा है तो इस समय तो अब उसको रीड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रीड तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो AD0 से AD7 वाली लाइन है, अब ये रेडी हो जाए नेक्स्ट साइकिल के लिए, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस वापस से आ जाए और AD0 से AD7 पे वापस से एड्रेस आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रीड सिग्नल T4 साइकिल में क्या होता है, डिसेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि अब उस पर वापस से क्या आए, डेटा आए, ठीक है। तो वापस से वो T2 स्टेट में एनेबल होगा। तो यही हमारा प्रोसेस होता है पूरा, किस चीज का, डेटा फ्लो का, किस लिए, ऑपकोड फेच के लिए, ओके। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, मेमोरी रीड साइकिल, ठीक है। ये हमारा सेकंड समझ लो, सेकंड टाइमिंग डायग्राम समझ लो। तो हमारा 8085 या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से कंटेंट रीड करता होगा, मेमोरी से। और मेमोरी, अगर आप प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो कौन कौन सी होती है, अगर सिर्फ प्राइमरी की बात करें तो रैम और रोम, ठीक है। अच्छा, अब मेमोरी रीड साइकिल में कितनी टी स्टेट्स होती हैं, 3 टी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हमने क्या क्या बताया था। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारा T1 साइकिल में, जैसे ही मैंने कल भी बताया था, मैं ये जो भी टाइमिंग डायग्राम बता रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर फॉलिंग एज से ट्रिगर होता है। तो जैसे ही ये फॉलिंग एज रिसीव होगी, मेरा माइक्रो प्रोसेसर वर्क करना स्टार्ट करेगा। A8 से A15 वाला जो हायर ऑर्डर बाइट होगी वो अवेलेबल हो जाएगी आपका एड्रेस के लिए, ठीक है। AD0 से AD7 पे आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके एड्रेस लैच इनेबल ने लैच को इनेबल कर दिया है, और लैच के इनेबल होते ही इस लाइन से, इस मल्टीप्लेक्स लाइन अब ये डीमल्टीप्लेक्स हो गई है और इसमें हमें एड्रेस मिलने लगा है। कौन सा एड्रेस मिलने लगा है, लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस मिलने लगा है, राइट। फिर जैसे ही ये ALE सिग्नल डिसेबल होगा, अब क्या होगा, इस लाइन पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा, राइट।
और ये एड्रेस तो आपके पास था ही, आपने यहाँ A0 से A7 दे दिया, हायर ऑर्डर एड्रेस आपके पास है ही। तो अब आप कहाँ पहुंच गए, मेमोरी की उस लोकेशन पे, अभी मैंने डायग्राम में बताया था, तो आप उस लोकेशन पे पहुंच गए। तो अब इस लाइन पे आपको एड्रेस नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो क्या हुआ कि आपके पास कोई कुरियर आना था, राइट। अब वो कुरियर आपके घर तक पहुंच गया है, तो अब उसको एड्रेस तो नहीं चाहिए ना, अब तो आपको जाके उस कुरियर को उससे रिसीव करना है। तो T1 साइकिल में आप वो कुरियर आपके घर तक आ गया है, राइट। अब इसमें देखो क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो T2 से आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रीड ऑपरेशन होता है तो बीच में एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर वो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा होता है जहां से उसको डेटा रीड करना है। तो जो ये लाइन आप बीच में देख रहे हैं AD7 से AD0 वाली, कि इसको थोड़ा टाइम लगा डेटा अवेलेबल होने में, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जो माइक्रो प्रोसेसर को लगा मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस की एड्रेस को लोकेट करने में, ठीक है। ओके, नाउ ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा, कब तक अवेलेबल रहेगा, जब तक कि माइक्रो प्रोसेसर की रीड साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। तो माइक्रो प्रोसेसर T2 से T3 साइकिल तक इसको रीड कर रहा होता है, इसलिए ये डेटा अवेलेबल रहेगा आपका T2 से T3 साइकिल तक, राइट। उसके बाद हाँ, ये सिग्नल्स कहाँ से इनेबल होने चाहिए, T1 स्टेट से। मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि इन कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स के बिना ना माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि मेमोरी ऑपरेशन है, ना ये पता चलेगा कि S0 और S1 के बिना कि उसको क्या ऑपरेशन करना है, राइट। अच्छा, हम हमेशा ही ये लाइंस ऐसे ही दिखाते हैं, एक लो एक हाई। आप उन वैल्यूज से कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यूज आपको मैनुअली लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि S1 तो 1 है, S0 तो 0 है, तो भी हमने इसको 1 और इसको लो दिखाया है। ये इसके रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि आप ऐसे दो लाइंस दिखाएंगे, आप इनकी वैल्यू लिखेंगे, उससे स्पेसिफाई होगा एग्जाम में कि आप मेमोरी रीड साइकिल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मेमोरी राइट या इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो गैप इसमें शो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मेमोरी ऑपरेशन है, मेमोरी ऑपरेशंस में एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड होता है मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए रीड ऑपरेशन में, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सेस टाइम की वजह से यहाँ पे ये गैप है, ठीक है। ओके, अब देखो ये डेटा फ्लो का डायग्राम है, ये बेसिक डायग्राम तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर सेम है। यहाँ देखेंगे अब क्या किया हमने, जैसे ही हमारा ALE सिग्नल इनेबल्ड हुआ, AD0 से AD7 मल्टीप्लेक्स लाइन पे क्या अवेलेबल हो गया, हमारा एड्रेस अवेलेबल हो गया। कौन सा एड्रेस अवेलेबल हो गया, लोअर ऑर्डर बाइट, A0 से A7, A8 से A15 हमारे पास था ही। फिर क्या हो गया, कुरियर वाला हमारे घर तक आ गया, राइट। तो यानी एड्रेस मिल गया। तो अब ALE सिग्नल T1 साइकिल के बाद डिसेबल हो सकता है। T2 साइकिल पे क्या हो गया, हमारा इस लाइन पे डेटा बस पे हमारा क्या आ जाएगा, D0 से D7 से क्या आ जाएगा, हमारा डेटा आ जाएगा। तो ये डेटा मेमोरी से यहाँ लोड हो गया डेटा बस पे, ठीक है। अब ये डेटा बस क्या करेगी, T2 से T3 साइकिल तक यहाँ पे हमारा क्या ले आएगी, डेटा ले आएगी, राइट। कहाँ ले आएगी, जिस भी रजिस्टर में उसको जाना होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाए फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करे, डिकोडर सर्किटरी के लिए फंक्शनिंग तो रिक्वायर्ड है ही नहीं इसमें। तो ये क्या होगा, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड में डिफरेंस देखिए। ऑपकोड फेच में क्या हो रहा था, T3 स्टेट के बाद T4 स्टेट एक्स्ट्रा लगती थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता था डेटा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डेटा डायरेक्टली अवेलेबल है। तो वो डेटा क्या होगा, या तो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर हो जाएगा T3 स्टेट में, ठीक है, कि BCDEHL में स्टोर हो गया, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्ट्रक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्रामर। नहीं तो क्या होगा, वो A मतलब एक्यूमुलेटर, तो या तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, आपकी इंस्ट्रक्शन पे, कि आपने मेमोरी रीड जब यूज किया है तो आपने एक्चुअली क्या एड्रेस दिया है। आप ये चाह रहे थे कि वो आपके BCD
EHL में स्टोर हो, या अगर वो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया था आपने तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो स्टेट T3 में जाके आपका डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में, इस वाले स्टेप में, है ना। जैसे ही T3 आपका एंड हुआ, आपने मेमोरी से डेटा रीड तो कर ही लिया था, अब इसके बाद एंडिंग स्टेप क्या होगा? ये आपका डेटा जाके रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ डेटा होगा आपका किसके लिए? मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए। ओके, अब देखते हैं मेमोरी एक्सक्यूज मी, अब हम देखते हैं मेमोरी राइट साइकिल। ठीक है, तो रीड और राइट साइकिल में क्या डिफरेंस बताया था? रीड में हमेशा क्या होता है? मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से डेटा कहाँ आता है? माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, और अगर मैं राइट कर रही हूं तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाएगा, हमेशा कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, जहां सेंड करना होगा हमें वहां जाएगा, राइट। ओके, इसमें भी कितनी साइकिल्स लगती हैं? 3T स्टेट्स। हमेशा इसको मेमोराइज करने का एक इजी तरीका ये है, ऑपकोड फेच हो रहा होगा तो उसमें 4T स्टेट्स लगती हैं यूजुअली। ठीक है, अगर आपका 1 बाइट एड्रेस है, अगर 2 बाइट का है तो हमें ज्यादा टी स्टेट्स भी लग सकती हैं, वो हम तब देखेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। ओके, हाँ, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इन अभी आप मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में देखेंगे, दोनों में 3T स्टेट्स लगती हैं। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये देखो मेमोरी राइट ऑपरेशन है। अब आप सबको याद हो ही गया होगा, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा? जैसे ही ALE सिग्नल इनेबल होगा, आपको A0 से A7 वाला डेटा मिलने लग जाएगा, राइट। अब देखो T2 में क्या हो रहा है हमारा? ये डेटा इमीडिएटली अवेलेबल हो गया है ना। अभी आप कंपेयर करो इसको, यहाँ देखो, यहाँ डेटा इमीडिएटली रीड नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मैंने फिर बताया, वो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ी प्रोसेसर को, और उस एड्रेस मिलने के बावजूद उतनी बड़ी मेमोरी में से उसको उस मेमोरी लोकेशन को लोकेट करना पड़ता है, तब वो डेटा डेटा बस पे अवेलेबल होता है। तो ये जो टाइम होता है, ये क्या है? एक्सेस टाइम। बट क्योंकि जब आप डेटा राइट कर रहे हो तो डेटा आपके पास रजिस्टर्स में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो रजिस्टर कहाँ है? वो 8085 में रजिस्टर तो स्पेसिफिक होते हैं, उनका एड्रेस इमीडिएटली अवेलेबल होता है। तो इसलिए 8085 क्या करता है? डेटा इमीडिएटली लोड कर देता है डेटा बसेस पे, जिस वजह से कोई भी एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये मेन मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के टाइमिंग डायग्राम में डिफरेंस होता है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ हमें कोई भी एक्सेस टाइम नहीं दिखाना है। ओके, इमीडिएटली डेटा अवेलेबल हो गया आपका डेटा बस पे। कहाँ से अवेलेबल हो गया? रजिस्टर से। ओके, अब ये आपका क्या ऑपरेशन है? मेमोरी ऑपरेशन है, तो मेमोरी बार है तो 0 रहेगा। S1 S0 की वैल्यूज क्या रहेंगी? 0 और 1, क्योंकि ये ही वैल्यूज ये दिखाती हैं कि एक मेमोरी राइट ऑपरेशन है। ठीक, जैसे ही T2 साइकिल इनेबल हुई, डेटा अवेलेबल हुआ डेटा बस पे, हमारा राइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये राइट ऑपरेशन क्या करेगा? जो भी एड्रेस आपने बताया था उस एड्रेस से वहां उस लोकेशन पे हमारा डेटा राइट हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, ये आपका डेटा फ्लो है, राइट। इसमें क्या हुआ आपका डेटा फ्लो में? आपका जैसे ही आपने ALE सिग्नल इनेबल किया, आपके पास एड्रेस आ गया, राइट। एड्रेस आया आपके पास, उसके बाद क्या होगा? अब आप देखो, आपको डेटा चाहिए था T2 साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमारी रीड में क्या हो रहा था? डेटा आ रहा था, पर जब आपको राइट करना है तो मैंने आपको बताया क्या होगा? डेटा रजिस्टर्स से आएगा, और हम उसको राइट करें, यहाँ पे ये शो किया है कि वो मेमोरी में राइट करा है। क्यों? क्योंकि ये एक मेमोरी राइट ऑपरेशन है। तो डेटा चाहे एक्यूमुलेटर से आ जाए आपका डेटा बस पे, या चाहे आपका जनरल पर्पस रजिस्टर से आ जाए, ये डेटा कहाँ आ गया? डेटा बस पे। डेटा बस पे आ गया। अब डेटा बस से उसको पता कैसे है कि उसको कहाँ जाना है? तो किसकी हेल्प से पता चलेगा उसको? आपके एड्रेसेस की हेल्प से। वो एड्रेस की लोकेशन आपने ऑलरेडी उसको बता ही दी थी T1 साइकिल में ही, ठीक है। उसको एड्रेस पता था जहां उसको जाना है। अब डेटा बस की हेल्प से डेटा आ गया T3 साइकिल में। जैसे ही राइट सिग्नल इनेबल्ड हो डिसेबल्ड होगा, सॉरी, तो वो क्या होगा? तब तक आपका डेटा राइट हो चुका होगा उस मेमोरी लोकेशन पे। क्योंकि वो डेटा राइट हो चुका है मेमोरी लोकेशन पे, इसलिए आपका क्या हो गया है? ये सिग्नल
डिसेबल हो गया है। तो ये आपका डेटा फ्लो होता है किसका, मेमोरी राइट ऑपरेशन का। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, क्योंकि मेमोरी के दोनों टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं, तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब हम इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट वाले ऑपरेशंस पे जाएंगे। किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक तक, मेमोरी रीड और राइट तक, तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, अभी सबको क्लियर है यहाँ तक, मेमोरी रीड और यस मेमोरी? मैम। ओके ओके, तो फिर हम इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट पे जाते हैं। ओके ओके, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, डेटा को कहाँ से रीड कर रहे होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, राइट। अब देखिए, ये आपका टाइमिंग डायग्राम है इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल का। इसमें क्या हो रहा होगा, सेम चीज हो रही होगी, द ओनली डिफरेंस इज कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस मिल रहा होगा हमको, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ALE सिग्नल जैसे ही इनेबल होगा, क्या होगा हमारा, AD0 से AD7 वाली लाइन तक आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस का लोअर बाइट एड्रेस, ठीक है। जैसे ही आपका ये T2 साइकिल इनेबल होगी, आपका रीड सिग्नल इनेबल हो जाएगा, और क्या होगा, आपका डेटा अवेलेबल हो जाएगा। फिर एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने फिर बताया आपको कि एड्रेस आइडेंटिफाई करके उस लोकेशन तक जाने में रीडिंग में टाइम लगता है, क्योंकि वो डेटा लाना पड़ता है प्रोसेसर को। तो वो रीड कर रहा है डेटा, इस वजह से उसको टाइम लगा। आईओ डेटा अवेलेबल हुआ, जैसे ही रीड साइकिल कंप्लीट हो गई, वो डेटा क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा आपका रीड सिग्नल, क्योंकि वो डेटा अब रीड हो चुका होगा। इनपुट आउटपुट मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन है, अब ये मेमोरी ऑपरेशन नहीं है, हमें आईओ ऑपरेशन दिखाना है। तो जो अब तक पिछली साइकिल में हम यहाँ 0 लिख रहे थे, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, राइट। S1 S0 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 और 0। तो ये हमारा एक क्या शो कर रहा है, मेमोरी रीड ऑपरेशन, राइट। ये हमारा डिवाइस का डेटा फ्लो है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, जैसे ही T1 इनेबल हुआ, क्या करोगे आप, आपका लोअर ऑर्डर बाइट अवेलेबल हो जाएगा। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट किसका है, अब मेमोरी का नहीं है, अब किसका है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जो कि कनेक्टेड होगा हमारे माइक्रो प्रोसेसर से। A8 to A15 अवेलेबल रहता ही है। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। तो ये देखो, A0 से A7 या A8 से A15, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जब हम इंटरफेसिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिवाइसेस के एड्रेसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो इसलिए ये ऐसे अलग अलग आया है, अभी हम देखेंगे। ओके, जब हम इंटरफेसिंग देखेंगे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तभी और क्लियर होगा। ओके, नाउ आपने क्या किया, क्योंकि ये एक रीड ऑपरेशन है, तो क्या होगा आपका, प्रोसेसर से, सॉरी, आपका क्या हो रहा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा आएगा किस पे, डेटा बस पे। तो आप उस डिवाइस तक पहुंच गए, राइट। अब क्या होगा, वो डिवाइस पे से डेटा आ गया, ठीक है। डेटा आ गया तो अब वो कहाँ जाएगा, आपके या तो एक्यूमुलेटर में जाएगा, या जहां भी जाना होगा चला जाएगा, क्योंकि वो रीड कर रहा होगा उस डिवाइस को। तो इनपुट आउटपुट से टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से डेटा आया, वो रीड हो गया। अब उसके बाद अगर आपको उसको राइट कराना होगा या कुछ, तो आप उसको एक्यूमुलेटर में राइट करा देना, अभी जब हम राइट ऑपरेशन देखेंगे, नहीं तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। अभी तो फिलहाल वो डेटा बस पे आ गया, रीडिंग कंप्लीट हो गई, राइट। इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा बस पे आके रीडिंग कंप्लीट हो गई, तो आपका क्या होगा, रीड ऑपरेशन फिर से क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, राइट। अब अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में उसको राइट कराना होगा, तो वो डेटा क्या चाहेगा आपका, वापस से आप किसी भी एक्यूमुलेटर में उसको राइट करा सकते हैं। तो यही चीज हम देखेंगे हमारे राइट साइकिल में। राइट का टाइमिंग डायग्राम देखो, राइट में क्या होगा, ALE सिग्नल मिलते ही आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का लोअर बाइट एड्रेस मिल जाएगा, हायर बाइट एड्रेस अवेलेबल रहता ही है आपका। जैसे ही T2 साइकिल स्टार्ट होगी, आपका राइट सिग्नल इनेबल हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स में डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वो डेटा क्या करेंगे आप, उसमें कोई एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये वैल्यूज डिनोट कर रही होंगी कि आपका एक मेमोरी राइट ऑपरेशन है। यहाँ देखो,
रजिस्टर से वो डेटा डेटा बस पे लोड हो गया T2 साइकिल में। T1 मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर अब आपको याद हो गया होगा कि एड्रेस मिल गया आपको कि कहाँ पे आपको राइट करना है। तो ये डेटा T2 साइकिल स्टार्ट होते ही आपका डेटा बस पे आ जाएगा। ठीक है, T2 साइकिल में डेटा आते 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 पूरा टाइम इनेबल्ड रहेगा और जैसे ही ये यहाँ आउटपुट डिवाइस पे आ जाएगा, राइट कर चुके होगे आप, आपका राइट सिग्नल डिसेबल हो जाएगा। तो ये होता है आपका टाइमिंग डायग्राम और आपका डेटा फ्लो। तो अगर एग्जाम में आपसे डेटा फ्लो पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। और थ्योरी में जो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर से वो एड्रेस कहाँ जाता है। प्रोग्राम काउंटर में हमारा जो 16 बिट का एड्रेस स्टोर्ड होता है उसमें से लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या होता है, AD0 से AD7 के फॉर्म में अवेलेबल रहता है हमारे पास। और ALE सिग्नल के इनेबल्ड होते ही वो लैच कर जाता है A8 से A15 पूरी पूरी T3 स्टेट तक हमेशा अवेलेबल रहता है। तो उसकी हेल्प से हम T1 स्टेट में हमें एड्रेस पता चल जाता है, राइट। तो हम उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो मेमोरी की लोकेशन हो चाहे वो डिवाइस की लोकेशन हो। आप ये लिखेंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि हमारा T2 साइकिल में क्या होता है, रीड या राइट सिग्नल जो भी इनेबल हो रहा होगा वो इनेबल हो जाता है और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। T1 साइकिल में ही कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स होते हैं आईओ, मेमोरी बार एंड S0 S1, जिनकी वैल्यूज से माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि उसको एक्चुअली रीड ऑपरेशन करना था या राइट, और वो ऑपरेशन रिलेटेड किससे था, इनपुट आउटपुट डिवाइस से या मेमोरी से। इस तरह से हम बताएंगे कि हमारा डेटा फ्लो करता है। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से हमें एड्रेस मिला, उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट से हमें रीड सिग्नल मिला जो कि हमें ये बताता है कि रीड है या राइट है। साथ ही साथ हमारे स्टेटस सिग्नल्स हमें ये बताते हैं कि एक्चुअली ऑपरेशन क्या कराना था। फिर स्टेप क्या होता है, जो भी मेमोरी लोकेशन होती है, अगर मेमोरी रीड है तो उससे डेटा आ जाएगा आपका डेटा बस पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी वो बाइट जो होगी, अगर आप ऑपकोड फेच कर रहे हो तो फोर्थ टी स्टेट क्यों लगती है, क्योंकि वो आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में और वो डिकोड होगा। बाकी सब में ये स्टेप नहीं होता, डेटा डायरेक्टली अवेलेबल होता है, इसलिए आपका 3 ही टी स्टेट्स लगती हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं 8085 के। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इंटरफेसिंग। उसमें मैं आज आपको पहले मेमोरी और उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। कल हम मेमोरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मेमोरी कैसे डिजाइन की जाती है, फिर हम उसकी इंटरफेसिंग पढ़ेंगे और फिर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की इंटरफेसिंग पढ़ेंगे। अभी जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन वेग लगती होगी, इसलिए क्योंकि ये जनरल माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंफॉर्मेशन बताई जाती है। अभी क्योंकि आप 8085 का स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं पढ़े हो और बहुत सारी जगह 8085 की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा डाउट लगता हो या कुछ। बट जैसे ही यूनिट 2 स्टार्ट होगी, ट्रस्ट मी, जब आप 8085 का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एक बार पढ़ लोगे तो और तब आप इन इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करोगे, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। सो प्लीज डोंट पैनिक। अब जितना मटेरियल दिया जाता है मैं समझाती हूँ, उसको अच्छे से समझिए। कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिए। आप मुझे मैसेज करके, जो हम लोग ने अपना अलग ग्रुप बनाया माइक्रो प्रोसेसर का, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे गूगल क्लासरूम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बस प्लीज टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा, पॉसिबल हो तो 9 to 5 ही मैसेज करिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। ओके, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपका डाउट एड्रेस करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज हमारे पास ट्यूटोरियल क्लासेस तो है ही। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। मैं ये शेयर कर स्टॉप करके मेमोरी वाला PDF आपके पास शेयर करती हूँ, जिससे कि वी कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। बिकॉज नोबडी हैज आस्क्ड मी एनी डाउट्स, तो आई एम अज्यूमिंग कि टाइमिंग डायग्राम और डेटा फ्लो वाला टॉपिक आपको क्लियर है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू ऑल श्योर कि टाइमिंग डायग्राम और क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो और इंस्ट्रक्शन फ्लो वाला ये जो डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, इट इज क्लियर? ओके, शुड आई प्रोसीड विद मेमोरी का क्लासिफिकेशन? ओके, आप लोग इतना दुखी क्यों हैं? सबके घर में सबकी तबीयत ठीक है ना? मतलब इतना
फर्स्ट क्लास है और इतना लो इन एनर्जी होके पढ़ रहे हो। मैं इतनी बीमार थी तब भी, अब थोड़ी बेटर हुई हूँ तब भी थोड़ा एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम लोग इतना दुखी होके पढ़ रहे हो भाई। थोड़ा एनर्जी लाओ, लॉकडाउन हट जाएगा, इतना दुखी मत हो। एवरीथिंग विल होपफुली बी फाइन। होप ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओके, सो इज द न्यू स्क्रीन विजिबल? क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी वाली, इज इट विजिबल? अरे दुखी बच्चों, बता दो। ओके, थैंक यू, Yes, थैंक ma'am. यू। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो सी, मेमोरी क्या होती है? अब तक तो कई बार पढ़े होंगे ये सब, तो तुम लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, बट क्योंकि सब्जेक्ट का टॉपिक है तो आई हैव टू टीच। तो मेमोरी क्या होती है? कोई बताएगा? कोई बताएगा मेमोरी क्या होती है? ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, राइट, जिनको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिससे कि हमारी बिट्स को स्टोर करें। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है मेमोरी की, दैट मेमोरी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स जिसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। अब अगर कोई पूछे कि वो सीक्वेंस क्या होता है, तो उसको आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर पढ़ा देना, जो मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेमोरी इज अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस जो कि बिट्स को स्टोर करते हैं, राइट। उसके बाद अगर मेमोरी को क्लासिफाई किया जाए तो मेमोरी मेनली दो तरह की होती है। एक प्राइम मेमोरी होती है और जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और दूसरी हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है जिसको कि हम सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, राइट। प्राइम मेमोरी का मतलब क्या होता है? प्राइम मेमोरी हमारी मेनली वो मेमोरी होती है जो कि हमारी कब यूज होती है? जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर फास्ट रिस्पॉन्ड करे। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फास्ट से फास्ट वर्क करे, राइट। तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो मेमोरी यूज क्यों हो रही होती है? प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस मेमोरी के लिए मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितनी स्पीड आप माइक्रो प्रोसेसर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस स्पीड के साथ आप उसमें प्रोग्रामिंग आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ये मेमोरी आपको उतनी फास्ट डेटा भी प्रोवाइड करे जिससे कि आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड से मैच कर सके। अब आप सोचो कि आप माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, अगर आपने कही है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर स्पीड पे वर्क करेगा बट मेमोरी उतना फास्ट आपको डेटा नहीं दे पा रही थी, तो क्या आपका प्रोग्राम उतनी फास्ट स्पीड से एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो, क्योंकि ये हमारे मेनली प्रोग्राम्स को स्टोर और एग्जीक्यूट करने के लिए होती है, और ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूटिंग स्पीड या एग्जीक्यूशन स्पीड को मैच कर पाए। ओके, ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी से। इसीलिए हमारे पास इसमें हम देखेंगे कि हमारी कौन सी मेमोरीज होती हैं, रोम और रैम, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट। सेकेंडरी मेमोरी क्या करोगे? आपको जो भी प्रोग्राम और उसके रिजल्ट स्टोर करने हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद, राइट। प्राइमरी मेमोरी में हम कौन से प्रोग्राम स्टोर करते हैं? जो हमारे उसके होते हैं बायोस वगैरह के, जो आपकी सिस्टम रनिंग में हेल्प करने में मदद करते हैं, राइट। और आप अगर अपनी ये सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो जो हमारी स्टोरेज मेमोरी है वो क्या होती है? हमारी मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स वगैरह होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट वगैरह स्टोर करते हैं, अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं। आप इस डायग्राम में देखोगे प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन मैंने रीड राइट मेमोरी मतलब रैम हो गया, ये स्टोरेज मेमोरी में हमारी डिस्क आ गई, फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम वगैरह आप देख लो, या मैग्नेटिक टेप्स हो गए। सीरियल एक्सेस मैंने बताया था क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। तो मैग्नेटिक टेप्स हमारे सीक्वेंशियल एक्सेस पे बेस्ड थे। ये इनका एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता था क्योंकि हम प्रेफर नहीं करते कि हर चीज सीक्वेंशियली चले, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है। हमने जब पैरेलल वाला और सीरियल डेटा ट्रांसफर पढ़ा था तो उसमें देखा था अभी। ओके, रोम का क्लासिफिकेशन है मास्ड रोम, पी रोम में, और अगर हम इरेजेबल में भी कहना चाहें तो ईपी प्रोम, डबल ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी, राइट। रैम में क्या है, स्टैटिक या डायनेमिक रैम, ठीक है, उसमें भी हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो चलो
रोम क्या होती है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा होगा वो सिर्फ रीड किया जा सकता है। आपको जो परमानेंट प्रोग्राम स्टोर करने होते हैं उनके लिए यूज होती है। नॉन वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपको पता होगा, जिन इन केस किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सिस्टम में जो भी आपने इसमें डेटा स्टोर किया होगा इस मेमोरी में, वो रिटेन रहता है हमेशा। अगर आप सिस्टम टर्न ऑफ करेंगे या कुछ तो वो डेटा लूज नहीं होगा। ओके, वो हमेशा आपके पास रहेगा इवन इफ द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ, ये इंफॉर्मेशन हमेशा इंटैक्ट रहती है। ओके, उसके बाद हमारा पहला टाइप अगर हम पढ़े मास ड्रॉम, तो मास ड्रॉम क्या होता है, मास ड्रॉम में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में आप उसमें जो भी डेटा स्टोर करोगे वो परमानेंटली एनग्रेव्ड होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेटलाइजेशन की प्रोसेस होती है,